Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. We are studying chapter number 2 addition and subtraction. Since we have learned and understood all the related concepts of addition and subtraction, we have started doing exercise number 2 और पिछली classes में हमने exercise number 2 के question number 1 to 10 solve कर लिए हैं. So let us start with today's class. Here we will do exercise number 2 remaining questions. Here we will solve question number 11 to 16. So children, these questions are given to us in word problems also known as story problems. Okay, यहाँ जो question है शब्दों में दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं word problems. And the numbers given to us are in Indian numbers. यहाँ Indian numbers में questions दिए हुए हैं. So let us start and find out what ऑपरेशन वी हैव टू डू इन दीज क्वेश्चंस. यहाँ क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना होगा कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. So while solving out these questions, we will use the direct method. In addition, we will use carrying in method, and in subtraction, we will use borrowing method. So let us start the question. Question number 11 here. Shyam bought an Almirah for this amount. It's a 4-digit number. Look at the number here. 6580. 6,580 rupees. And a bed for again a 4-digit number. 2624. 2,624. How much money has Shyam spent in total? Okay children, if you have understood the question, आपको easily समझ आ गया है. यहाँ पे श्याम ने दो चीजें खरीदी है. पहला है एक अलमीरा, the amount is given to us, and second is a bed, again amount is given to us. फिर यहाँ हमसे पूछा गया है कि श्याम ने total amount कितना खर्च किया है. So children, whenever it's asked about total, so total means sum we have to do, and to find the sum we have to add both the numbers. जब हमें टोटल निकालना होता है हम एडिशन करके फाइनल आंसर निकालते हैं. तो टोटल खर्चा कितना किया है जब हम अमाउंट ऐड कर देंगे, अमाउंट स्पेंड फॉर अलमीरा एंड एन अमाउंट स्पेंड फॉर बाइंग दिस बेड. सो वी विल गेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय श्याम. सो लेट अस स्टार्ट हियर. This is the solution. Shyam bought almirah for, this is the amount given. Shyam bought bed for, again the amount is given. So we will add this and use the direct method. हम add करना चालू करेंगे ones house से. So in the ones house you see here last में है 0 और next number में है 4. So 0 and 4 is 4 here. Next we move to tens house. Tens house में है 8 and 2. 8 plus 2 is children 10. So you know that 10 का 0 जाएगा same house में और 1 चल जाएगा next house में. We will add it as a carry. So when we add this with the numbers 5 और 6 मिलके बनेंगे 11. 11 plus 1 is 12. So 2 चला गया यहाँ और 1 in the next house. Again it will be added in the same house. सेम हाउस में यहाँ हमारे पास है 6 plus 2. 6 plus 2 is 8 and 8 plus 1 is 9. So this is our final answer. Total amount spent by Shyam is 9204. Okay, 9204 is 9204. This is the amount spent by Shyam for buying almirah and a bed. Okay children, now let us do the next question in the same method. Question number 12. Rama bought a almirah for 3,450 rupees and Radha bought another table for rupees 2,960 rupees. What is the price difference between both the tables? बच्चों यहाँ आप मान सकते हैं दो फ्रेंड्स हैं रमा और राधा, दोनों ही टेबल्स लेके आई हैं बट अमाउंट जो स्पेंड किया है वो अलग अलग है. ठीक है, रमा का अमाउंट यहाँ दिया हुआ है, ये है 3450 और राधा ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है ये भी दिया हुआ है 2960. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस. सो चिल्ड्रन इन द क्वेश्चन ओनली इट इज क्लियरली गिवन कि हमें डिफरेंस निकालना है. सो डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है एंड यू नो दैट व्हेन एवर वी फाइंड डिफरेंस हम करते हैं सब्ट्रैक्शन. ओके, तो हम बड़े नंबर में से जब छोटा नंबर माइनस कर देंगे हमें मिलेगा द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल्स. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. हियर वी विल यूज बोरोइंग इन मेथड व्हेनेवर डिजिट इज फाइंड स्मॉलर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Rama bought table for,
Again here we have written the amount. Radha bought table for amount we have written. So we will start subtracting from the ones house. हम ones house में देखते हैं 0 और 0, 0 में से 0 गए, 0 ही बचेंगे, कुछ भी माइनस नहीं करना है. नेक्स्ट हाउस में आइए, टेंथ हाउस में आपको मिलेगा 5 माइनस 6. सिंस 5 इज अ स्मॉलर डिजिट, यहाँ हमें बोरो करना होगा हमारे बड़े वाले हाउस से. सो लेट अस बोरो -1 हियर. 4 में से -1 गए, यहाँ बचे 3 और यहाँ 1 और 5 मिलके बन गए हैं 15. सो व्हेन वी -15 माइनस 6 हमें मिलेगा 9. ओके, नेक्स्ट हाउस में यहाँ हमारे पास 3 ही बचे हैं और 3 में से हमें 9 माइनस करना है. अगेन 3 इज अ स्मॉलर डिजिट, फिर से हमें करना होगा बोरो. यहाँ हम बोरो करेंगे थाउजेंड्स हाउस से. देखिए यहाँ हम 3 में से -1 कर देते हैं, यहाँ ये जाके बन जाएगा 13 और यहाँ रह जाएगा सिर्फ 2. सो 13 माइनस 9 इज चिल्ड्रन 4. लेट अस राइट डाउन 4 and now the last house 2 minus 2 0. So this is the price difference. Difference हमें मिला है 490, that is 490. This is the difference between both the tables, the amount spent more by Rama. Okay, so here we have solved this question. Now let us move on to the next question. Question number 13. Add the greatest and the smallest 4 digit number. यहाँ हमें सबसे पहले greatest 4 digit number निकालना है और उसमें 4 digit का smallest number add करना है. So children you know that greatest 4 digit number, इसका मतलब चारों places पे हमारे पास आ जाना चाहिए 9. Okay, because you know that 9 is the greatest digit. So हम यहाँ 4 places पर जब 9 लिख देते हैं in Indian numbers, this is the greatest 4 digit number 9999. इसमें हमें ऐड करना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. इसका मतलब 4 प्लेसेस पर हमारे पास सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए. सी चिल्ड्रन यू नो दैट 0 जो होती है वो सबसे छोटी डिजिट होती है, बट चारों प्लेसेस पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं. इट इज नॉट अ नंबर. ओके, सो पहले नंबर पर, पहले डिजिट पर हम लिखते हैं यहाँ 1. ओके, बाकी प्लेसेस पर हम 0 लिख सकते हैं. सो दिस मीन्स 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, वी विल गेट द फाइनल आंसर. सो लेट अस स्टार्ट एडिंग इट. 9 plus 0 is 9. Next house 9 plus 0 again 9, 9 plus 0 again 9, and finally 9 plus 1 is 10. So we will write down 10 here. So this is our final answer 10999. 10,999 is our final answer. We have found the sum of both the numbers. Now let us move on to the next question. Question number 14. Here number of students are given who have appeared in the exam. The number is 264. 264 students appeared in an exam. 194 of them passed. Find out the total number of failed students. बच्चों यहाँ पर हमें टोटल नंबर दिया हुआ है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था. ठीक है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से ये जो नंबर है ये है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास. इतने बच्चे पास हो गए हैं. अब हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स. ओके बच्चों, इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड ये दोनों एडेड होते हैं. अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फेल कितने बच्चे हुए हैं वो हमें निकालना है. ठीक है, तो जब हम टोटल नंबर में से पास स्टूडेंट्स को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं वही नंबर हमें निकालना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस हियर. सो वी विल यूज सब्ट्रैक्शन. Okay, so we will subtract total number of students. इसमें से हमें subtract करना है number of students passed. Okay, so here first we have written total number of students 264. We will subtract number of students passed from the total number 194. जब हम इसमें से माइनस कर देंगे हमें मिलेगा number of students failed. So let us start subtracting it in the direct method. We will subtract from the ones house. Last में है 4 और 4 minus 4 is 0. Next we have 6 minus 9. बच्चों ये हम नहीं कर सकते हैं, हमें लेनी होगी borrowing. तो हम बोरो करेंगे हंड्रेड्स हाउस से. यहाँ 2 है, 2 में से 1 कर दीजिए -1 और यहाँ 1 जाके 6 के साथ मिलके बन गया है 16. So 16 minus 9 is 7. Let us write down 7 here.
Next we have 1 minus 1, that is 0. That means 7070 is the number of students failed in the exam. ठीक है, यह हमने किस तरह से निकाला, हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, टोटल नंबर में से कितने बच्चे पास हो गए हैं वो भी दिया हुआ था, और फाइनली हमसे पूछा गया कि कितने बच्चे फेल हुए हैं. तो जब टोटल में से हम पास स्टूडेंट्स को निकाल देंगे, बाकी जो बच्चे बचे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड. Okay, so we have used here subtraction method in borrowing in. Now let us do the next question. Question number 15. Addition of two numbers is 9732, 9732. If one of the number is 3846, 3846, then find out the second number. बच्चों यहाँ पर उसी तरह से हमें टोटल दिया हुआ है दो नंबर्स को, मतलब दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं हमें मिलता है ये नंबर, उसमें से पहला नंबर हमें दिया हुआ है और दूसरा नंबर हमसे पूछा गया है. ठीक है, हमें पहला टोटल दिया हुआ है और पहला नंबर भी हमें पता है. तो बच्चों यहाँ हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट हमें टोटल नंबर दिया हुआ है, टोटल में से जब हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे, जो बाकी का डिफरेंस बचेगा वो होगा सेकंड नंबर. दैट मीन्स वी हैव टू डू हियर सब्ट्रैक्शन इन द डायरेक्ट मेथड. सो फर्स्ट वी हैव रिटन एडिशन ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर को टोटल करके ये जो आंसर आया है वो हमने पहले लिख दिया है. फर्स्ट नंबर भी हमें पता है, ये भी हमने यहाँ लिख दिया है. सो व्हेन वी विल माइनस द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, वी विल फाइंड आवर आंसर, दैट इज द सेकंड नंबर. ठीक है, हम यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्शन. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वंस हाउस. देखिए यहाँ 2 में से हमें माइनस करना है 6. देखिए 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है. हम करेंगे यहाँ बोरो. सो वी विल बोरो फ्रॉम द टेंस हाउस. यहाँ 3 में से हम -1 कर देते हैं, यहाँ बचेगा 2 और 1 और 2 यहाँ जाके बन जाएगा 12. 12 में से हम 6 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 6. नेक्स्ट देखिए 2 - 4 फिर से नहीं हो सकता है, यहाँ भी हमें बोरो करना होगा. 7 में से -1 कर देते हैं, यहाँ हमारे पास बचेगा 6 और ये 1 साथ में जाके बन जाएगा 12. अब 12 में से हमें 4 माइनस करना है, वी विल गेट 8 एज अ आंसर. नाउ 6 - 8 फिर से नहीं हो सकता है, हम करते हैं बोरो. 9 - 1 इज 8, यहाँ बच गया 8 और 1 यहाँ जाके साथ में मिलके बन गया 16. सो 16 - 8 इज चिल्ड्रन 8 अगेन. हम यहाँ 8 लिख देते हैं. नाउ द लास्ट डिजिट, दैट इज द थाउजेंड्स नंबर. 8 - 3 हमें करना है. 8 में से 3 गए, लास्ट में बचेगा 5. सो दिस इज द सेकेंड नंबर. ये जो हमें डिफरेंस मिला है, दिस इज द सेकेंड नंबर जो ऐड होके बना था टोटल नंबर. देखिए आप रीचेक भी कर सकते हैं, जब आप फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को ऐड करेंगे आपके पास मिलेगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द आंसर 5886, 5886. ओके, नाउ लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2. Question number 16 is, for sewing 3 curtains, we need this meter of cloth. This is a 3-digit number, 125, 125 meter of clothes, and for 5 tents we need this meter of cloth. Again a 3-digit number, यहाँ पर हमारे पास है 286. Okay, 286 meter of cloth. How much cloth is required फॉर कर्टेंस एंड टेंट्स बोथ? देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें कर्टेंस सिलने हैं और यहाँ पर दिया हुआ है हमें टेंट्स भी सिलने हैं. कर्टेंस और टेंट सिलने के लिए कितना मीटर क्लॉथ लगेगा वो भी दिया हुआ है कि 3 कर्टेंस को सिलने के लिए इतना मीटर क्लॉथ लगेगा और 5 टेंट्स को सिलने के लिए इतना मीटर क्लॉथ लगेगा. अब पूछा जा रहा है हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टेन्स एंड टेंट्स बोथ. इसका मतलब यहाँ से हमें टोटल पूछा जा रहा है कि कर्टेन और टेंट को मिला के टोटल कितना मीटर कपड़ा लगेगा. ठीक है, इसका मतलब हमें करना है एडिशन, बिकॉज हियर वी हैव टू फाइंड द टोटल ऑफ बोथ द नंबर्स. ओके, सो वी विल हियर ऐड cloth needed for 3 curtains and cloth needed for 5 tents. So when we add both the numbers, we will get our answer cloth required for both, that is curtains and tents. तो हम ऐड करना चालू करते हैं छोटे हाउस से, that is one's house. यहाँ हमारे पास है 5 + 6. Children 5 + 6 is 11.
1 जाएगा सेम हाउस में और नेक्स्ट 1 चल जाएगा इन द 10th हाउस। हम ऐड करेंगे इसे बाकी के नंबर्स के साथ। 2 + 8 इज 10 एंड 10 + 1 इज 11। फिर से आया 11 और 1 चला गया है नेक्स्ट हाउस में। हियर 1 + 2 is 3 and 3 + 1 is 4. That means this is our final answer, that is cloth required for both curtains and tents. That is this much meter of cloth. ये आंसर आया है बच्चों मीटर्स में। ओके 411 meters of cloth we need for sewing curtains and tents both. Okay children, so here we have completed exercise number 2 and we have finally completed our chapter number 2 addition and subtraction. आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने दो मेथड सीखे यहाँ पर, प्लेस वैल्यू मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग आउट दीज क्वेश्चंस। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई विल सी you all in the next class and we will start there chapter number 3, that is multiplication and division. So see you everyone. Thank you. Take care.